First of all, I would like to want to know from you people how much you have been gone through with economics earlier. Would you please raise your hands? You had economics in your previous classes? Okay. So rest of are the new for economics? Yes. Okay, no worries. So as we know, our subject of economics is particularly not towards on a static and dynamic. It's both. Static in the sense of economics is like if we are talking about economics at present, what is the situation of Indian economy? In static point of view, what is the Indian economic situation at a dynamic point of view? Static in the sense, whenever we are talking about at a particular time period of time, what was the economic status? We are a developing economy. It's a static or a dynamic? Dynamic, because we are moving towards a higher side from the past 1950s to towards the higher stage of 2050. We are changing each and every element of economy, either is inflation, unemployment, poverty, growth rate, GDP, per capita income. So all the factors are increasing day by day. It may increase or decrease both. So dynamism represents the economy which is changing day by day. Either is a monetary policy, fiscal policy, and so on. Same as some components of economies are static in nature. Any example? Even the population, we are taking an example as a dynamic because it's changing day by day. What policy, what thing, which factors you consider as a static? Anyone? Can we say the economic resources? Not the economic, but the natural resources of economy. It may be that we can find out the few resources in the later on stage by the research and development. But ultimately the area of economy, the resources like we have an oil, we have an sea, we have other resources that is fixed in nature. They cannot be changed within the time at a particular time period. It may change with the time period of like years or in a months and so on. So economics, whenever we are studying economics, we need to consider that we are taking an economics in the two point of view. One is in a static point of view, another is a dynamic point of view. What is static? That remains constant. Like one more thing we can add in the economic point of view, few things which has already been done. Like we are saying we are in 2023, we started our journey into 1950. 1950 we started the journey. From that point of view to up to this point, things have been static. In the case of 1950, we started planning, Indian planning we started. First 5 years, second 5 years, how many plans we have? Till now 12 5-year plans are being completed, and now we are moving towards a Niti Aayog. So whatever we have done till date, that is in first 5-year plan, our objective was to be self-sufficient. Okay, second 5-year plan, our objective was to industrial development. Third 5-year plan, again we go for a development of industry and agriculture together, and we move toward the green revolution in 1966. So things are stagnant at that point. अब उनको change नहीं कर सकते. What has been done means done. So whenever we are studying economics, we need to understand from a paper point of view, कुछ चीजें, some things are like static which cannot be changed, that we have to take as it are. First 5-year plan, what was the target of economic growth and whatever we have achieved. What was the poverty rate in 1950 when we got independence? These things are somewhere somehow not a static, but somewhere somehow they are static. Are you getting my point? So few things are static in nature. Whenever we started till the point, they are in the path of dynamism, but they are static. That remains constant. But if I'll say what is the monetary policy at present, it may gonna fluctuate quarterly. वो हर month 3 months के बाद change हो रहा है. So that we need to understand. The few concepts we need to understand which are fixed. In economics, some theories are fixed. Monetary policy components are fixed. Fiscal policy components are fixed. That is stagnant. That is not supposed to change by we people. That is cannot be changed with the development of economy, isn't it? No doubt these policies, like I'm taking an example of monetary policy. Monetary policy stands for, those are new for economics. I'm just coming to the basics, but I'm giving you an example how we need to understand an economics. Okay? So if I'm taking an example of monetary policy says money, and the policy which regulates the money is called monetary policy.
Monetary policy regulates the money supply in the economy. Money supply in the economy means whatever is the supply of money, it's in a cash, into drafts, into circulation in money, in the coins, that money to be circulated by some authority, that is incoming by the economy. From where we are getting money? From where we are getting money? RBI. RBI is issuing a currency? Is it? Okay. So circulation of money comes, no doubt. I'm just trying to find out how much we are supposed to do. Is it we have to go for a deep down, or you are already aware of all the basic things? Thoda sa we'll got to know about you people, then we will start in that pace only. So first of all, money supply in the economy comes from, हमने कहा कि coming from RBI. Currency is being issued by the RBI. Chalo, we'll talk about later on. So money which is coming into the market, that is in the form of cash, isn't it? So how and why sometimes the money is to be in a higher side, sometimes it's into the lesser side. Means kabhi the money comes into higher side, means when there is more money in the economy, what will happen? Inflation comes, because your purchasing power goes up, you are having a more money with you and you start buying commodities. Everybody is having money, everybody starts demanding. Everybody starts demanding, commodities are in the less of number, demand is from more side, price will go up, product ke price बढ़ जाएंगे. So it creates inflation in the economy. In the opposite side, suppose there is no production in the economy, there is a pandemic was there, people were not working, people do not get their income, their salaries in the time. So what happened? Inflation. It's deflation. Inflation ka reversible deflation. People were not demanding cars, not luxury goods, no restaurants, nothing. Demand was there, but due to some reason that was not supposed to done. So whatever the money we had, that kept in our pockets only. And that's why there is a decrease in the prices of the commodity, because it was abundant in the supply. Commodities market में थी, but हम नहीं buy कर रहे थे, तो prices fall down हो जाएंगे. अभी money तो उतनी थी ना, पैसे market में से गायब तो नहीं हुए, ना ही ज़्यादा पैसे आए. Money was that same in the circulation, but the velocity of money has been decreased. Velocity means, must be a science students, velocity matlab the speed of money, that is the rate at which money is changing their hand. Suppose I have 100 rupees, I'm spending my money, I'm buying something, going for a shopping and spending, out of 100 rupees I'm spending 90 rupees. She got 90 rupees, my expenditure is her income. 90 rupees, she kept 10 rupees with her and she is spending 80 rupees further. Again 80 rupees spending to 70 rupees. 70 got 60, 60 got 50, 40, 30, 20, 10, 1, 0. It will take almost velocity of 10% in between. इसका मतलब मार्केट में लोगों की परचेजिंग पावर हाई है, इसीलिए velocity of money long time process किया. In the second side we can say I have 100 rupees, I am just spending 10 rupees out of it and 90 I am saving. So 90 save हो गया, it's not coming into circulation. 10 is coming into his pocket. Out of 10 rupees, he is spending only 1 rupee. 9 rupees is his saving. 1 rupee में से 50 पैसा यहीं पे circulation खत्म हो गया. So somewhere somehow velocity of money is somewhere somehow small. Money उतनी ही थी market में, पहले भी उतनी थी, अभी भी इतनी है. So somewhere somehow our purchasing power, our demands are creating an inflation and deflation into the economy. That is the one thing. Second thing, whenever the money is the fixed in quantity, एक साल में demonetization क्यों किया? कि जितनी money है उतनी वापस आ गई, तो इसका मतलब everything is okay. If it is coming more in the circulation, इसका मतलब black money market में चल रही थी, तो वो same quantity को वापस लाना चाहते थे and they got it. That's the thing. If the same money isn't there in the economy, how it creates inflation and deflation? कैसे वही मनी कभी इन्फ्लेशन क्रिएट कर देती है और वही मनी कई बार डिफ्लेशन क्रिएट कर देती है. इन्फ्लेशन आएगा तो बूम आएगा कि डिप्रेशन आएगा? बूम आएगा. एंड इफ इट इज डिफ्लेशन देन इट कम्स टू रिसेशन. जब किसी के पास पैसे खर्चने नहीं है तो आप खर्चेंगे नहीं, तो इट विल नॉट कम एज अ डिमांड. व्हेन यू आर नॉट डिमांडिंग, you are not creating production, you are not producing, you are not being employed. When you are not employing,
अगेन यू विल नॉट गेट इनकम, तो वो रिवर्सिबल साइकिल चलेगा। और अगर वही डिमांड होगी तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो एम्प्लॉयमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा इनकम आएगी, लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा डिमांड करेंगे। मूव ऑन द पॉजिटिव साइड। समवेयर समहाउ दैट सर्कुलेशन ऑफ मनी इज इंपॉर्टेंट। हु विल रेगुलेट इट? कौन बताएगा, कौन इसको कंट्रोल करेगा कि मार्केट में कितना पैसा होना चाहिए? Government of India. They will decide, and obviously RBI, no, but Government of India is like me. I have given some authority to the banks, some authority to stock exchange, some authority to food corporation, some authority to the disaster management. तो मैंने जो इंडिया के काम थे वो बांट दिए। So बैंकिंग का काम किसको बांटा? RBI को। Reservation of money, control of money. So somewhere somehow that money is being controlled, जिसे हम क्या कहते हैं? Contraction and expansion. Contract करना मतलब कम करना, एक्सपैंड करना मतलब बढ़ाना। वो दोनों काम जो करने हैं वो गवर्नमेंट करेगी अपनी पॉलिसीज के थ्रू, एंड दैट पॉलिसी विच रेगुलेट द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी। गेटिंग अ पॉइंट? सो फ्रॉम देयर वी विल एबल टू अंडरस्टैंड। अभी हम बात स्टैटिक और डायनेमिक की कर रहे थे, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूं कि कौन से कंपोनेंट स्टैटिक कहला रहे हैं, कौन से डायनेमिक हो रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कब से बनी हुई? वो फिक्स्ड है, उसके कंपोनेंट्स आ गए। कंपोनेंट्स मींस कौन से इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाएगा। बैंक रेट, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट रेट, बिकॉज वी पीपल डील विद interest rate. If we want more money in our hand, we will go to the banks and will ask for a loans. If the loans are easily available, we'll get more money in our hand, we will spend more, demand more, inflation will come. That's it. If government will charge high rate of interest, we would not like to go for loans. We will have less money, we will less demand, circulation price नहीं बढ़ेंगे. So somewhere somehow government is intervening to controlling the price into the market by higher side or by the lesser side. अभी bank rate, reverse repo rate, CRR, SLR, marginal requirement, MSS, various instruments are there. We will discuss that topic. And then we will discuss in a particular point क्या क्या उसमें है। अभी हम आपको सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स हो गए ना, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये इंस्ट्रूमेंट्स है, इनके थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल किया जा रहा है। सो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो फिक्स्ड है, लेकिन उसके रेट्स में चेंज आ रहा है। सो इट इज अ डायनेमिक एज वेल एज अ static too. So that's why same as the thing, in few concepts we are saying in economic concepts are dynamic as well as the static. Monetary हमारी प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन 1951 से स्टार्ट है। पहला प्लान हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, उसके टारगेट, उसके अचीवमेंट, उसके टारगेट, उसके अचीवमेंट वो फिक्स है, आज चेंज नहीं कर सकते। दैट इज डन, दैट इज गॉन। लेकिन आज हम आने वाली पॉलिसीज के लिए प्लान आउट कर सकते हैं, वो चेंज कर सकते हैं। तो एक ही चेंज डायनेमिक भी हो सकती है और स्टैटिक भी हो सकती है। रिसोर्सेज फिक्स्ड भी हैं एंड वी आर जस्ट फाइंडिंग अ न्यू रिसोर्स इन इंडिया, दैट इज we have just explored a new resource in India, lithium, that into J&K for the production of semiconductors and the batteries. So that is static था ना, resources तो static थे हमारे पास, area static था, लेकिन वो dynamism आ गया उसमें with the resources upliftment. We are getting some new resources, we can change the static to the dynamic concepts. Done? So this is the basic thing. Then whenever we are talking about economics, ये static भी होता है और dynamic भी होता है। तो हम जब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो चीज तो स्टैटिक है वो तो बदल नहीं सकती, दैट इज फिक्स्ड। कुछ डेटा, कुछ पॉलिसीज, कुछ जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस का डेवलपमेंट हुआ वो फिक्स्ड है, वो डेट्स हैं, वो डेटा है, वो इकोनॉमिस्ट के नेम है, वो ऑथर्स के नेम्स हैं, वो बुक्स के नेम्स हैं, वो चेंज नहीं होने वाले। तो आपको अपना प्लानिंग जब करना है रीडिंग का, वो 2 पॉइंट ऑफ व्यू से करना है कि कुछ चीजें तो स्टैटिक है, वो मुझे डेली पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आज मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ गई, कम हो गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ है, ज्यादा हुआ। दैट इज अ स्टैटिक इन नेचर। फर्स्ट 5-year प्लान में टारगेट वाज दिस मच, वी अचीव्ड दिस मच। वंस यू गॉन थ्रू विद इट, इट विल फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड इट रिमेन्स कांस्टेंट। दूसरी चीज आपको जो डायनेमिकिज्म के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, वो है जो आपकी नई नई चीजें डेली चेंज हो रही हैं। इधर इज रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सेबी के रेट्स, कोई मॉनेटरी पॉलिसी आ गई, पॉवर्टी एलिवेशन की प्रोग्राम है, हाउसिंग फाइनेंस की कोई पॉलिसी है, जो इकोनॉमी डे बाय डे चेंज कर रही है। तो आपको जब भी प्रिपरेशन करना है,
दो तरीके से करना है. Static point of view, which is fixed in nature, that data should be kept and separate, and whatever is a changing day by day, that need to be eradicated or changed on the monotonous times. Done? Let's come to the basic. As we are going through with economics, and many of non-aware to the economics, there is a new for them. Otherwise, we have to start it with the basic thing, that is demand. Obviously, as we have gone through with the purchasing power, inflation आ गया, वो किसकी वजह से आया? Demand side से आया. And the second important concept is a supply, because anything in the economy that will determine the price. हमारे पास दो तरह के फैक्टर्स होते हैं. वैसे मुझे आपको पहले हम इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के बाद में बात करते हैं. We have two words, economics and economy. Can anybody differentiate the two? A bit of whatever you feel like you know. कुछ भी जरा सा इकोनॉमिक्स, क्योंकि उसके बाद हम उसके डीप डाउन जाएं, फैक्टर्स क्या हैं, प्राइस क्या है, गुड्स क्या है. Economics and economy में you're not visible to me. Can you just stretch out your seats to be a bit of right side so that I can concentrate on you? I'm not getting. Yes, economy और economics में क्या difference हो सकता है? Anything, come out with thoughts, then we can start with the study. Economics is a study. Economy is a place. Economics is study of. Okay. Perfect. So place है ना, एक एरिया की बात कर रहे हैं. और इकोनॉमिक्स, रिसोर्सेस. What are the economic resources? Economic development. Economy development नहीं, economic development. Some are talking about the theories, economic theories. अगर जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो they must be knowing some economic theories, classical theory, modern theory, Keynesian theory. जबकि ये क्या है, उसका practical implementation है. One is like about what it is, and second is how the distribution of goods. Economy में तीन channels बहुत important, दोनों में ही. One is for the production, second is a consumption, and third is in a distribution. तीन फैक्टर इकोनॉमी के सबसे इंपॉर्टेंट चैनल्स और द पिलर्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं: प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. प्रोडक्शन स्टैंड्स फॉर व्हाटएवर द रिसोर्सेज यू हैव, हाउ यू आर प्रोड्यूसिंग. अभी हम इसके बारे में बात करेंगे. कंजम्पशन मींस all the consumption done by the population of economy in any way. Either is a luxurious goods, it is a necessity goods, either is a any kind of commodity. Third is the distribution. If I am producing a commodity, I am getting an income. How I will distribute that income within you people? I am producer. मैंने production किया, आपने consumption कर ली मेरे से commodity लेके, मेरे पास पैसे आए. Now I have to distribute that income with you people. जिन लोगों ने इसको करने में मेरी help की थी, मुझे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. So this is again a big question, how the economy will distribute the resources. प्रोड्यूसर भी हो सकता है और इकोनॉमी भी हो सकती है. प्रोड्यूसर कौन है? जो प्रोडक्शन कर रहा था, उसने क्या किया? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड अदर फैक्टर्स को हायर किया. मैंने एक्स कमोडिटी बनाई, एक्स कमोडिटी बनाने के लिए मैंने लैंड लिया, मैंने लेबर लिया, मैंने कैपिटल लिया, मैंने अदर रॉ मटेरियल लिया, एंड आई प्रोड्यूसेस द गुड एक्स. एक्स कमोडिटी को मैंने बायर को सेल किया, बायर से सेल किया, मुझे प्रोडक्ट का प्राइस मिला. प्रोडक्ट का प्राइस जब मिला तो मुझे इन सबसे फैक्टर लिए थे ना, ये सब क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो मुझे इनको वापस क्या करनी है? फैक्टर इनकम. उनको रिटर्न भी तो देना है ना. क्या क्या रिटर्न मिलेगा? लेबर को क्या मिलेगा? वेजेस. लैंड को क्या मिलेगा? रेंट. कैपिटल को क्या मिलेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट. एंड फैक्टर्स को क्या मिलेगा? देयर इनकम. अगर रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल का प्राइस, इलेक्ट्रिसिटी है इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस, ट्रांसपोर्ट है ट्रांसपोर्ट का प्राइस, जो जो मैंने फैक्टर्स हायर किए. एंड हु इज हायरिंग दीज फैक्टर? एंटरप्रेन्योर. दैट एंटरप्रेन्योर गेट्स प्रॉफिट आउट ऑफ इट, क्योंकि मैंने सारे फैक्टर्स को कोलैबोरेट किया, रिस्क लिया और प्रोडक्शन किया, तो मुझे कुछ रिटर्न तो मिलना चाहिए. माय रिटर्न इज प्रॉफिट्स. सो अब जब प्राइस आया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी तो करना है ना.
वो लैंड को कितना देना है, लेबर को कितना देना है, फैक्टर्स को कितना देना है, अपना प्रॉफिट कितना रखना है, दैट इज अ थर्ड चैनल। अगर तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो इकोनॉमी बराबर है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मींस नो अनएम्प्लॉयमेंट, नो पॉवर्टी, नो अनइक्वल इनकम ऑफ वेल्थ, इक्वालिटी आ गई। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं हुआ तो इकोनॉमी में हैव्स एंड हैव्स नॉट्स के बीच में ब्रिज क्रिएट हो जाएगा, इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी, पॉवर्टी बढ़ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। सो इकोनॉमी की कोई भी प्रॉब्लम इन तीन चैनल से बाहर नहीं जाती है। These are the pillar of economics and economy as well. जब हम इनके theoretical concepts की बात करते हैं, प्रोडक्शन की थ्योरी, कंजम्पशन की थ्योरी, डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी, दिस इज द वन पॉइंट, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट, इकोनॉमी इज अ कंट्री। इकोनॉमिक्स में हम थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, प्रैक्टिकलिटी हम इकोनॉमी के बिहाफ पे करते हैं। हमने यहाँ थ्योरी लगाई कि अगर आप प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वलाइज्ड करते हैं, इकोनॉमी में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। ये मैंने थ्योरी बनाई, उसको मैंने इकोनॉमी में प्रैक्टिकली एप्लीकेबल करके देखा। इंटरनेशनल इकोनॉमीज कहती है देयर इज अ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमी इज इक्वलेंट। इंडियन इकोनॉमी कहती है हैव्स एंड हैव्स नॉट्स में बहुत फर्क है, इसका मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ आपका, प्रोड्यूसर प्रॉफिट ज्यादा ले गया, कंज्यूमर को बेनिफिट नहीं हुआ। सो समवेयर समहाउ दैट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रैक्टिकलिटी। ये मॉडल्स बनाते हैं, थ्योरीज बनाती हैं, ये उसका एम्पिरिकल एविडेंस प्रूव करते हैं। ये स्टैटिक है, थ्योरी बन गई, बन गई। ये डायनामिज्म है, economic development is going on day by day, day by day, day by day. So this is all about how the things are changing with these three factors of production, consumption and distribution. So first of all we need to understand what is the difference of that. Done. Now we are saying, if we know, first thing is in economics, as we are determining the theories, we are making the models, we are making hypothesis, we are making theory, laws. Four things we used to talk about in economics: law, hypothesis, models and theories. ये सारे ही सारे कुछ assumptions के बेस्ड पर किसी चीज को डिटरमिन कर रहे हैं। They are determining something like whatever is done in glacial years. But सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इकोनॉमी में है, that is determination of price. Before that, we need to understand how many resources we have, so that we can determine how the price has been determined. Factors कितने तरह के होते हैं? 4, like नहीं, वो factors of production है। Resources कितने तरह के होते हैं? Isn't it? Natural and man-made, दो तरह के रिसोर्सेज हैं, या तो वो स्टैटिक और डायनेमिक है ना, या तो फिक्स हैं जो नेचुरल से मिले, ये जो हमारे हैं, हमारे में कौन से आ गए? Okay, natural resource we know, air, water, fixed, land loads and all. What is the man-made factors? Machineries, tools, techniques, our skills, our management techniques, हमारी working skill, हमारे द्वारा बनाई गई चीजों की working skills, ठीक है, वो सारी क्या है? Man-made है। तो इन दोनों resources का प्राइस डिटरमिन करना पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द इकोनॉमी इज टू डिटरमिन द प्राइस। किसी भी कमोडिटी का प्राइस कैसे डिटरमिन करना, दैट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव। सो इफ वी टॉक अबाउट नाउ कमिंग टू द लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स, लेट्स से द एंटरप्रेन्योर, वी कैन सी नाउ लास्ट फैक्टर। लेट्स टॉक अबाउट लेबर। लेबर का प्राइस, लैंड का प्राइस, कैपिटल का प्राइस, एंटरप्रेन्योर की बेनिफिट्स का प्राइस, किसी भी चीज का प्राइस, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो फैक्टर्स हो, हमारे पास दो चीजों का प्राइस डिटरमिन होता है, वन इज फॉर गुड्स, सेकंड ऑफ फॉर फैक्टर्स। ये सारे कौन है? फैक्टर्स। गुड्स क्या है? एनी एक्स वाई जी इज द गुड, चाहे वो लग्जरियस गुड्स है, either it's a necessity good, it is a any kind of commodity. So whenever we are determining the price, either is a goods price or is a factor price.
हम दो तरह से प्राइस डिटरमिन करते हैं. Whenever the demand is equals to supply or demand intersect the supply, that will be the determining of the price. किसी भी चीज की डिमांड और सप्लाई जब इंटरसेक्ट करेगी तो वो उसके प्राइस को डिटरमिन करेगा. कोई भी चीज है, कोई भी चीज. So we are going through with a bit of examples how many things can be done like this. Let's talk about the labor. One side can be demand for labor, second could be the supply of labor. Wherever the both are equal, price will determine. कैसे? Demand for labor. अब इसको पहले समझने की कोशिश कीजिएगा. I'm taking a price on this side. If a price of labor is ₹100, I would like to hire one labor. If price is ₹50, I would like to hire 4 labor. If it is ₹10, I may hire 10 labor. It means demand for labor is irreversible to the price of labor. So I can find out the demand curve of labor from these combinations. Getting done? So ये हो गई हमारी demand for labor था. Secondly, we are saying supply of demand for labor कौन कर रहा है? Entrepreneur. If I want to produce something, I would like to hire labor from you people. And if you will come at a 5,000 rupee, I will say let's go for 50 people. If I have to charge you 1 lakh rupee, I would like to hire a one person. So higher the price, lesser will be the demand. Lesser the price, higher will be the demand. From producer's point of view. Now, you people are labor. You are the workers. 10 rupees पे कितने लोग काम करने को तैयार हैं? No one. ₹50, some may gonna ready not to be ₹50, maybe a lakh. Okay, so if rupees higher supply of labor will be there. कम salary पे कम लोग, higher salary पे higher लोग. So supply of labor is a positively sloping with the price. Demand is inversely related with the price. So this is the point comes out where the demand and supply. How many people are ready to do the work? How many people I would like to hire? Both are equal to each other. That is a determination of the price and the quantity of labor in the market. So यहाँ पर हमारा वेज रेट डिसाइड हो गई कि इस रेट पर मार्केट इक्विलिब्रियम में है. इक्विलिब्रियम मींस नो डिमांड इज मोर, नो सप्लाई इज मोर. अगर ये सिचुएशन खराब होती, अगर रेट 100 रुपीज होता, व्हाट इज द सप्लाई? 100 रुपीज से ज्यादा काम करने को रेडी है ना, लेकिन मैं तो इतना ही डिमांड कर रही हूं. सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड. क्या होगा जब अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक कहा उन्होंने, अनएम्प्लॉयमेंट. सप्लाई इज मोर देन डिमांड, अनएम्प्लॉयमेंट होगा. जब अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो आप क्या करोगे? कम पे रख लो. यू वुड लाइक टू डिक्रीज द वेज रेट एंड फॉल डाउन टू द इक्विलिब्रियम अगेन. रिवर्सिबल सिचुएशन हो गई. I am asking for more people to do the work at cheaper rate, but people are not ready to do the work. So what I have to do? I have to increase the wage rate. Please do come and follow up my job. So I have to increase the price. Ultimately, what the results come out? Economy's labor price can be determined on the behalf of demand and supply intersection. अब मैं इसी डायग्राम से आपको सारी चीजों के प्राइस डिटरमिन करके बताती हूँ. Let's talk about capital. Demand for capital is downward sloping. Supply of capital is positive sloping. अब यहां पर क्या आ गया? वेजेस की जगह क्या आएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप ज्यादा डिमांड करोगे कि कम? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप कम डिमांड कर रहे हो, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप हाई डिमांड कर रहे हो. तो डिमांड कब कैसी हो गई? डाउनवर्ड स्लोपिंग. मुझे लोन आपको देना है, आई एम अ प्रोड्यूसर, आई एम ऑफरिंग अ कैपिटल टू यू. हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ज्यादा कैपिटल दूंगा, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कम कैपिटल दूंगा. अगेन डिमांड एंड सप्लाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिन ऑन दिस साइड. दोबारा से इक्वल हो गया. लैंड का भी हो गया, लैंड का नहीं लेंगे हम. इसी तरह हम किसी गुड्स का ले सकते हैं, किसी कमोडिटी का ले लीजिए. डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स intersect each other.
demand and supply of any factor intersect each other, not to the land. Why? Why? लैंड के लिए क्या डिटरमिन होगा? रेंट. Here we are, that is static in nature, that is fixed. We cannot say Pakistan please get side and China get side, we need more people, we need more space. No, so that is a static, ये fixed है. अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, अगर डिमांड कम होगी तो प्राइस कम होगा. Higher the demand of labor, higher will be the price, higher will be the rent. Lesser will be the demand of land, lesser will be the rent. So we cannot increase the supply of land. Otherwise, अभी भी determination कहाँ हुआ? Supply and demand के basis पे हुआ ना? So that's why we got to know that whenever we need to determine the price of any factor or we need to determine the price of any goods, that can be determined with the intersection of demand and supply of each other. Except of land, even though the equilibrium comes out with the demand supply intersection, but supply of land is fixed. Are you getting my point? So we got to know basics how the price is being determined, and if there is any disturbance between the price upper side or the lower side, what happens? It ultimately comes to be the equilibrium. अभी हम आपसे इसलिए बता रहे हैं this is called market forces. कौन? Demand and supply are considered as market forces. कि whenever इसमें गवर्नमेंट आई कहीं, आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए था, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देना था, उसमें मार्केट में गवर्नमेंट तो कहीं नहीं आया ना? आया कहीं पे? We did it by on. अपनी डिमांड सप्लाई को हमने मैनेज किया एंड वी डिटरमिन द रेट ऑफ इंटरेस्ट. हमने अपनी डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर को इक्वलाइज किया एंड वी गॉट द रेट ऑफ वेजेस. गवर्नमेंट वाज नॉट देयर. सो अल्टीमेटली इट मींस टू से दैट क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो पुराने एडम स्मिथ, मार्शल एंड रिकार्डो, दीज इकोनॉमिस्ट वर इन द फेवर इकोनॉमी अपने आप से चलती है, गवर्नमेंट को आने की जरूरत नहीं है, मार्केट फोर्सेस के थ्रू इकोनॉमी चलती है. यू डोंट नीड any interference from the government is required only for one thing, law and order. गवर्नमेंट सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव काम करेगी, गवर्नमेंट हर चीज का प्राइस नहीं डिसाइड करेगी. ठीक है. फिर न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आए, दे सेड दैट नहीं, 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया, उससे पहले सारी इकोनॉमीज फ्री फोर्सेस से चल रही थी. बट इन 1930 व्हाट हैपेंड? देयर वाज अ ग्रेट डिप्रेशन इन ऑल ऑफ द नेशंस. सो व्हाट हैपेंड? दे सेड दैट अगर इतना ही मार्केट फोर्सेस ठीक कर रही थी अपने आप को, तो why the great depression happened? Why the economies collapsed? Why the inflation come into the market? Why unemployment occurs in the economy? It means किसी को तो ठीक करना पड़ेगा. And who is that किसी को? Means to the government. So they started thinking about it. Laissez-faire policy is not working. Government need to interfere to equalize the economic development. That's why we moved from the classicals to the neoclassicals. Done? So what we can fetch it out of it is this is the market forces. Demand and supply are the market forces. So hope you are able to understand the basic things like how the price mechanism works on, and the price mechanism depends upon the demand and supply forces. Done. Now we are moving a bit of ahead. जैसे हमने मार्केट इकोनॉमिक्स पढ़ी, इकोनॉमी पढ़ी, अब इकोनॉमिक सिस्टम्स पढ़ते हैं, because that's a basic, that's the first topic in your syllabus basically. Economic systems. What is economic system? It's tool of a government that how the production, distribution, consumption should go on in the economy. कैसे चैनलाइज्ड किया जाए, किस सिस्टम के थ्रू इकोनॉमी को चलाया जाए, वो प्रोसेस, वो सिस्टम क्या होगा जिससे इकोनॉमी चलाई जाएगी, वो इकोनॉमिक सिस्टम है. They said that 3 type of economic systems are there. Capitalism, socialism and mixed economy. If I'm talking about the economic point of view, then I said in capitalism, socialism,
and mixed economy. I'm writing a capitalist, socialist, and the mixed economy. Now, a few things to be very clear about the economic status, because a few questions comes out in the paper as well. Few features will be given and you will be asked which feature is not representing the capitalistic economy. 4 क्वेश्चन 4 पॉइंट्स दिए होंगे और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में से आपको ये बताना है कौन सा सोशलिस्टिक नहीं है, कौन सा कैपिटलिस्टिक नहीं है. तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन economy, capitalistic economy to socialist. Some people come in the favor of the poor class and they started making a government. They started making a policies from this side. Then you are moving to capitalistic to socialistic economy. And when the both are coming together, we go to the mixed economy. So these are the 3 status of economy, and capitalistic, socialistic, and the mixed economy. Are you getting the basics? Yes, ma'am. Can I have an example of socialistic economy? Yes, one more. अभी हमने बात की. Perfect. Can you give me an example of mixed economy? Socialist, this one, sorry, capitalistic economy. US, One more. France, Germany, many of countries are there. Okay, so we have a basic concepts of economy on the behalf of which we are dividing the economies to be there. Now, after that, once we have divided the economy, there comes a major problem. अभी हम देखो, अभी I just gonna write down, then you got to know कि हम क्या discuss करना चाह रहे हैं. देखो, हमने सबसे पहले इकोनॉमिक सिस्टम की बात की. पहले हमने इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी की बात की कि दोनों में डिफरेंस क्या है. फिर हमने इकोनॉमिक सिस्टम की बात की क्योंकि ये जो इकोनॉमी है ये अलग अलग तरह की है. कोई कैपिटलिस्टिक है, एक सोशलिस्टिक है और एक मिक्स्ड है. अब हम कह रहे हैं जब हम इकोनॉमीज के बारे में बात कर चुके हैं, सभी इकोनॉमीज चाहे वो कैपिटलिस्टिक है, सोशलिस्टिक है या मिक्स्ड है, दे ऑल कम अप विद सेम क्वेश्चंस. जो हमारी मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, दैट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लाइक इकोनॉमिक सिस्टम. हमारा इकोनॉमिक सिस्टम कौन सा है? मिक्स्ड इकोनॉमी. वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ कैपिटलिस्टिक, वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ सोशलिस्ट. इट मींस व्हाट वी हैव टू टेक, 3 चीजों का ध्यान रख के हमें क्वेश्चन डिसाइड करना है. Limited resources, unlimited wants, and third one is proper allocation. ये आप इंडिविजुअल की बात करें, आप एक इकोनॉमी की बात करें, आप एक वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें. In all the 3 ways, we are talking. phone छोड़ दीजिए. We are talking about the same 3 problems, starting from unlimited wants. सबसे पहले हमारे पास limited wants या limited resources, unlimited wants. We want to have the same time period. We want to go on phone, we want to go for an outside, we want to eat somewhere, we want to play some games, and we have to watch the movie as well, and we have to attend the class too. Same time period में हमें बहुत कुछ करना है. Wants are unlimited. Time 1 घंटा ही है. We have to take a decision how to allocate the resources into the proper way. I have 100 rupees. I want to spend it on the movie. I want to spend it on some eating joints. I want to spend it on some clothing. I have 100 rupees only. Limited resources, unlimited wants. मुझे allocate करना है क्या खरीदूं, कैसे खरीदूं बेस्ट. इकोनॉमी, ये क्या थे? माइक्रो. मैंने अपनी बात की, आपकी बात की, ये माइक्रो लेवल की बात. मैक्रो लेवल की बात हो गई इकोनॉमी एज अ होल. ऊपर से देखो, नेशन एज अ होल. नेशन के पास क्या लिमिटेड है? कौन से रिसोर्सेज? और कुछ मैनमेड रिसोर्सेज भी लिमिटेड है. ठीक है. अनलिमिटेड वॉन्ट्स कौन सी है? क्या अनलिमिटेड वॉन्ट्स है इंडिया की? सारी पॉवर्टी भी खत्म हो जाए, सब लोग इक्वल भी हो जाएं. वी शुड बी अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी. वी शुड सेंड आवर स्पेसशिप्स इनटू द वर्ल्ड इकोनॉमी. वी शुड हैव इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ इकोनॉमी. वी वांट
to achieve all the targets. Either it's a trade, it's a production, it's a development, it's agriculture, industry, and so on. Limited resources, unlimited ones. गवर्नमेंट के पास पैसे लिमिटेड है, बजट लिमिटेड है, हेल्थ भी ठीक करनी है, एजुकेशन भी ठीक करनी है, ट्रांसपोर्टेशन भी ठीक करना है, एंड एवरीथिंग वी नीड टू करेक्ट, बट रिसोर्सेज आर, क्या किया जाए, एलोकेट किया जाए प्रॉपर वे से, सो दैट वी कैन बेनिफिट आउट ऑफ इट, चाहे वो माइक्रो लेवल हो गया, चाहे वो मैक्रो, आर यू गेटिंग इट? सो चाहे वो सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, चाहे वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, चाहे वो मिक्स्ड इकोनॉमी, तीनों इकोनॉमिक सिस्टम की प्रॉब्लम सेम है। अगर कैपिटलिस्टिक है तो वो क्या चाहेगा, कम से कम पैसे लगे और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो जाए। सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, कम से कम पैसे खर्च हो, लोगों का वेलफेयर हो जाए। मिक्स्ड इकोनॉमी है, पैसा भी मिल जाए, वेलफेयर भी हो जाए और पैसे भी बन जाए। तो ऑल द थ्री इकोनॉमीज आर कमिंग अप विद द सेम क्वेश्चंस। रेडी? नाउ व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कम आउट व्हेन वी हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस? इसके अंदर हमारे पास तीन प्रॉब्लम्स आती हैं। What to produce, how to produce, for whom to produce. What to produce? The decision making is about selection of goods. कौन सी commodity बनाए? What to produce? क्या बनाए? The things which are into aggregate demand in market. मार्केट में जिस चीज की डिमांड है हम वो चीज का प्रोडक्शन करेंगे। अब मार्केट में डिमांड सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे बदल सकती है। इट कुड बी वॉर टाइम, इट कुड बी अ पीस टाइम, इट कुड बी योर अननेचुरल सिचुएशन, इट कुड बी अ नेचुरल सिचुएशन। आप एग्रीगेट डिमांड कर रहे हो, इस टाइम वॉर चल रही है, देयर इज अ मच मोर डिमांड ऑफ द वॉर टाइप प्रोडक्ट्स, वी नीड टू इंपोर्ट मोर ऑफ रफेल्स, मोर ऑफ M32 एंड सो ऑन, सो वी वुड लाइक टू प्रोड्यूस दैट कमोडिटी ओनली। इफ देयर इकोनॉमी इज अ पीस टाइम, ठीक ठाक चल रहा है, सब बढ़िया है, वी वुड लाइक टू प्रोड्यूस फूड प्रोडक्ट्स, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ इकोनॉमी। If there is an unnatural situation, we need to produce more of like vaccines. If it is a natural situation, we can development of economy with industrial goods only. So आपका एग्रीगेट डिमांड मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इकोनॉमी एज अ होल मार्केट में क्या डिमांड है उसके हिसाब से आप सिलेक्शन ऑफ गुड करेंगे और वो आपके क्वेश्चन का आंसर देगा। कोई भी इकोनॉमी हो, लेट्स से इट्स अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, वो क्या डिसीजन लेगी, कैसा कमोडिटी बनेगा, ठीक है। मार्केट में इस टाइम लोगों की डिमांड फॉर लग्जरियस गुड्स बढ़ रही है, तो आई शुड प्रोड्यूस अ लग्जरियस गुड। If economy is 10 years back, people are demanding more regarding to the basic electronics. So demand of the electronic products should be there. We should produce electronic products. आज से 50 साल पहले people needs to more of consumable goods, wheat, rice and basics. We should produce that commodity. So on the behalf of requirement of aggregate demand, you will see the market structure. On the market structure, you will see the situations of the market, and you will produce that commodity. कोई भी इकोनॉमी हो, चाहे गवर्नमेंट इकोनॉमी हो, सोशलिस्टिक हो, कैपिटलिस्टिक हो, मिक्स्ड हो। हाउ टू प्रोड्यूस? वी हैव टू वेज टू प्रोड्यूस, लेबर इंटेंसिव एंड सेकंड इज अ कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है जिसमें लेबर ज्यादा लगी है कैपिटल से, और कैपिटल इंटेंसिव का मतलब है जहाँ कैपिटल लगी है लेबर से ज्यादा। अगेन Indian economy should opt which kind of technology? Labor intensive. We have a cheap labor, and China should adopt. They don't have people. They have labor, but their labor is costlier. They're not supposed to produce a product at same price because the labor is comparatively costlier than the capital. So that's why we have to take a decision. Like if we talk about the Russian economy, or like we can say the New Zealand, or we can say the Poland. We can talk about Japan. जापान किस स्टेज में है इस टाइम, पोलैंड किस टाइम पे है, फ्रांस किस कंट्री के स्टेजेस पे है,
they are on the 5th stage of demographic transition. थोड़ा सा मैं टॉपिक से बाहर जा रही हूँ, but it is a bit required to understand. कुछ कंट्रीज 5th स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस में है. हम एक दिन डेमोग्राफिक का टॉपिक करेंगे, देन आई लेट यू नो. इट मीन्स टू से दैट व्हेन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज इन नेगेटिव, पॉपुलेशन बढ़ने की बजाय कम हो रही होती है. पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है? डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट. जितने पॉपुलेशन हो रही है उसमें से कितने लोगों की डेथ हो रही है, उनके बीच का डिफरेंस क्या है? 100 लोग ने बर्थ लिया, 50 की डेथ हो गई, तो अगले साल कितनी पॉपुलेशन बढ़ी? 50 की. वो कह रहे हैं ये जो ग्रोथ रेट है ना, ये जब रिवर्सिबल हो जाए, बट डेथ तो होनी ही होनी है, लेकिन बर्थ रेट होना बंद हो जाए और डेथ रेट ऊपर चली जाए, क्रॉस कर जाए एक दूसरे को, तो वो वाली पॉपुलेशन स्टेटस क्या होगी? नेगेटिव ग्रोथ रेट. कि आपकी पॉपुलेशन पिछले साल 100 की थी और आज 80 की रहेगी और अगले साल आने में 60 की रह जाएगी. दैट कंट्रीज आर लैकिंग विद द ह्यूमन रिसोर्स. Labor is decreasing very drastically in those nations, and we are planning to achieve that target, not that a negative target, but we are trying to achieve. Indian economy अपनी NPP National Population Policy of 2000 के अकॉर्डिंग हमारा टारगेट है कि 2045 तक हम 0% ग्रोथ रेट पे आ जाएंगे. उसके बाद क्रॉस करेंगे ना कि हमारी जो बर्थ रेट और डेथ रेट है वो 0 हो जाएगी, कि पॉपुलेशन नहीं बढ़ी अगले साल, उसके बाद रिवर्सिबल आएगी. तो हमारा टारगेट है पॉपुलेशन पॉलिसी का कि 2045 तक हम 0% ग्रोथ पे आए. और चाइना विल अगेन और सपोज टू अचीव दैट टारगेट बाय 2030. वो 2030 तक 0% ग्रोथ रेट को अचीव कर लेगा. हमारी ग्रोथ रेट 1.65% की है, चाइना की 0.5% की है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. हमसे 3 गुना कम उनकी ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. सो दे विल अचीव द टारगेट इन कमिंग टाइम पीरियड एंड वी वुड लाइक टू टेक ऑन 20 years टू अचीव दैट टारगेट. तो इससे हमें क्या मिला? लेबर रिसोर्स. कि कुछ कंट्रीज ऐसी हो गई जिनके पास टेक्नोलॉजी हायर है लेकिन लेबर रिसोर्स कम होता जा रहा है. तो पहली चीज जो हमारे को डिपेंड करना है, एक तो अवेलेबिलिटी, दूसरा उसका प्राइस. ये दोनों चीजें डिसाइड करेंगी कि आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगाएंगे या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. गेटिंग माय पॉइंट? सो इफ इट्स लेबर इज चीपर यू विल ऑप्ट मोर लेबर. इफ लेबर इज abundant means ज़्यादा, scarcity means कम. If labor is abundant in nature, you will apply higher of labor. So these two decisions will make you the decision of technique, how to produce, which technique is to be adopted, for whom to be produced. किसके लिए बनाना है? हाँ जी? For whom we are producing the commodity? Sorry? Consumer? कौन है consumer? Population is a consumer itself. Which type of population? कौन सी तरह की population के लिए चीज बना रहे हो? आप प्रोड्यूसर हो, any XYZ, you are producer. आप कौन सी commodity बनाना चाहते हो? जिससे प्रॉफिट ज्यादा हो. ठीक है, आप कौन सी चीज बनाएंगे जिससे प्रॉफिट ना हो, वेलफेयर हो? आप गवर्नमेंट है, आप कौन सी चीज बनाएंगे? कौन सी प्रॉफिट? किस में हो रहा है प्रॉफिट? बताओ आप. यू आर द पार्ट ऑफ इकोनॉमी होगी. टेल मी which commodity you will produce. You want to produce a business, you want to go for a new business. Clothes का. Anyone come out with a new example? Luxury items. Luxuries items. Everyday use वाली चीज़ होगा. वो बनाएंगे. चलिए. So we need to take a decision. Okay, at least you'll come out with an answer so that you got to know कि आप किस तरह की चीज़ को सोच रहे हैं, आप कहाँ तक सोच रहे हैं चीज़ को लेके. So for whom to produce depend upon the society. Society कैसी है? आप रिच क्लास सोसाइटी में रहते हैं या पुअर क्लास सोसाइटी में रहते हैं? If you are in rich class society, you will produce that commodities, luxurious goods बनाओगे. अगर आप पुअर क्लास सोसाइटी में रहते हो तो आप कारें और हाई ब्रीड कार्स बनाने का कोई मतलब नहीं है. ये जो सोसाइटी है ये फर्दर 2 पार्ट्स की वजह से बनी है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. अगर इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल है तो इसका मतलब everybody is having the same income, so everybody can buy the product, so I can produce any kind of commodity. If the equal distribution is not there in the society, it means few societies
buying a good commodity and the rest of the society is producing buying a low quality product. तो मुझे फिर dilemma आएगा कि मैं प्राइस के पीछे भागूं कि क्वांटिटी के पीछे भागूं. You will like to produce a commodity. Second, ये बात फिर से याद है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. आप कहते हो आप अपनी कंट्री में वाटर प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हो. You don't have Rafale equipments, you don't have that kind of technology, you can produce such kind of high-tech aircrafts. So that's why somewhere somehow you are being bounded, you are not supposed to produce even though you want to. बनाना चाहकर भी आप नहीं बना सकते क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी नहीं है. सेकेंड, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल है या नहीं है. अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज इक्वल, यू कैन प्रोड्यूस एनी डैम कमोडिटी. बट इफ इट्स नॉट, देन यू हैव टू चूज द कमोडिटी. यू विल गो फॉर लग्जरी, यू विल गो फॉर अ नेसेसिटी. सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ इकोसिस्टम्स गो ऑन एंड यू विल राइट टू मेक अ डिसीजन रिगार्डिंग द सेम. इसके ही बिहाफ पर वी हैव वन मोर. Let's say labor and capital are the two factors of production. Labor and capital. L stands for labor, C stands for capital. I am producing a one production possibility curve, transformation curve, production frontier. बहुत सारे नाम होते हैं, वो आपको इतना समझने की जरूरत नहीं. ये क्या बता रही है कि अगर आपकी कंट्री के जितनी कैपिटल है, इतनी कैपिटल है, सारी की सारी लगा दी, जितना लेबर है सारे के सारा पॉइंट कर दिया, तो आप इस लेवल का प्रोडक्शन कर सकते हो कहीं पर भी. कोई भी चीज बना लो, इसके अंदर भी जो मर्जी बना लो. इज इट? यहाँ पर प्रोडक्शन करोगे तो क्या होगा? इतना लेबर इतना कैपिटल लगाया, बाकी वेस्ट हो गए. यहाँ पर प्रोडक्शन किया, इतना लेबर इतना कैपिटल, बाकी वेस्ट. कॉम्बिनेशंस है ना, किसी कमोडिटी में लेबर ज्यादा लगती है, किसी में कैपिटल ज्यादा लगती है. सो यू कैन मेक ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ इट, बट यू कैन प्रोड्यूस बिटवीन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. आपको ए बी सी डी ई कोई भी पॉइंट, आप ये पॉइंट प्रोडक्शन नहीं कर सकते बिकॉज दैट्स आर unattainable point because your resources are not allowing you to go for that production. So you need to understand how you can opt the resources given the frontier and how you cannot produce out of the frontier. Hope you are able to understand the basics of economics and economy and price mechanism, and further is the ecosystem. So we have touched upon a few parts of your topics. Otherwise we can continue with a particular topic a day and we can then go for its static and dynamic both. Getting my point? कुछ टॉपिक उसका हम स्टैटिक क्या करेंगे, जो पुरानी पॉलिसीज हैं, थ्योरीज हैं, जो हमें याद भी करनी है. एंड विद इन अ व्यू टाइम वी विल गो फॉर, I'll ask you people again and again, isn't it? Like I'm going through with some policy and like a KG students we used to say, come on read up of the policy of national population policy comes up in 2000. He will be answered. What is the growth rate of Indian population? 1.65. What is the growth rate of China? 0.5. At what year we will able to achieve a 0% growth rate? 2045. At what rate the China will achieve? 2030. So we will like to make some kind of half and 15 minutes we'll make to just a revision once. And few things we will like to copy up as well, but you have your things with you, your material is there with you. You can do one thing, like whatever the topic we'll discuss over there, later on the part, you can go through and try to find out the questions out of it. So that you can make sure that topic is being clear to you and you can find out the answer out of it. Major किसी भी टॉपिक को पढ़ने का ऑब्जेक्टिव ये होता है, हम आपको पूरी इकोनॉमिक्स बता दें और आपको उसको क्वेश्चन को सॉल्व भी करना ना आए तो उसका कोई मोटिव नहीं है. आपको ये होना चाहिए आप चाहे टॉपिक इतना सा कर रहे हैं, उसके ऑल्टरनेटिव्स कर करके कितने क्वेश्चन बन सकते हैं. दैट कैन बी हेल्प आउट फॉर यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. मेरा एक टॉपिक डन है, दैट इज पुट इट ऑन द साइड. आई एम टेकिंग अ सेकंड टॉपिक. व्हाटएवर द एक्स्ट्रा थिंग्स हम जो डिस्कस करेंगे वो एक अलग चीज़ है, लेकिन टॉपिक से रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस आपके आते हैं उसको करिए और उसके अपने एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को बना के रख लीजिए. एंड प्लीज कीप इन योर माइंड यू हैव टू वर्क ऑन सम स्टैटिक्स बिकॉज दैट इज नॉट सपोज टू बी ऑन रैंडम बेसिस. वो आपको लर्न ही करना पड़ता है कुछ चीज़ें. आई एम नॉट सेइंग गो फॉर अ लर्निंग एंड क्रैमिंग द थिंग्स. वंस वी विल इन द क्लास वी विल डिस्कस अगेन एंड अगेन, वो वैसे ही याद हो जाती हैं. ग्रुप डिस्कशंस का मतलब यही होता है कि आपको वो चीज़ें बार बार करने के साथ लर्न हो जाती हैं. डन. सो दिस इज द बेसिक थिंग्स ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म. हाउ मेनी ऑफ नॉन इकोनॉमिक स्टूडेंट्स otherwise they were able to understand the basics of
प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे देन विल ट्राई टू फिच योर आइडेंटिटी और योर आई कैन से योर, आपको थोड़ा सा हमें इस चीज़ में पता चलेगा इफ आई एम यूजिंग अ वर्ड इन अ मॉनेटरी पॉलिसी गोज इन दिस एंड दिस वे, तो आपको उसके बीच के वर्ड्स नहीं मालूम है ना। मैंने कहा मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मॉनेटरी सप्लाई, तो आपको वो चीज़ें भी नहीं पता। तो आई वांट टू गो फॉर द फर्स्ट सेकेंड लेक्चर टुवर्ड्स दिस थिंग जो हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर करे, फिर हम उसकी रिदम में आएंगे टॉपिक को लेके। लाइक आज मैंने सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा, तो अनएम्प्लॉयमेंट के ऑल द मैटर्स, मेजर्स, इनकम डेटा, एक दिन मैंने सिर्फ इन्फ्लेशन पढ़ा। सो दैट वी वांट कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू ग्रिप यू पीपल सो दैट आई गॉट टू नो हाउ रेंडमली और हाउ फास्टली यू आर टेकिंग द थिंग्स, ओके। So in this way we can determine the three systems of economy. We can have more time. Can you go ahead? Yeah, sure. Afterwards, if you want in economic system only, there is a very okay. Further, we are dividing into the economic system, as we are saying these are three. Afterward, divided into two parts: micro and macro. Done. As we said that any economic sector is there, चाहे वो सोशलिस्टिक है, कैपिटलिस्टिक है, हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी है, वो इसी सर्कुलर वे से चलता है। और इन सर्कुलर वे को चलाने में ये दोनों मैटर्स काम करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो। आई कैन मेक अ चार्ट एज वेल, अगेन गो फॉर अ डिफरेंस ऑफ ऑल। इफ वी हैव एन हाफ एन आवर वी कैन डिस्कस द माइक्रो एंड मैक्रो सो दैट आपको आफ्टरवर्ड्स के हम एक पर्टिकुलर टॉपिक उठा के डिस्कस कर सकें। That is just to explain basics, is it? Let's talk about individual. Let's talk about individual. And let's talk about economy as whole. वो पूरी इकोनॉमी के बारे में बात करता है। क्या बात करता है? इकोनॉमी के कोई भी डिसीजन, कौन सा डिसीजन है? प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो either we are talking about individual थ्री डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, मुझे क्या बनाना है, मुझे क्या कंज्यूम करना है, मुझे पैसे कहाँ खर्चने हैं, चाहे इकोनॉमी को पैसे कहाँ से आएंगे, इकोनॉमी ने क्या बनाना है, इकोनॉमी ने क्या खर्चना है, चाहे वो बजट बनाए, चाहे पॉलिसी बनाए, चाहे मॉनेटरी पॉलिसी, चाहे फिस्कल पॉलिसी, व्हाटएवर विल बी डन एट अ मैक्रो लेवल। दिस इज एट माइक्रो लेवल। दिस इज नैरो, दिस इज इट्स अ वाइड because it compresses all the population, all the society. It talks about only individual. Anything else you want to add upon this? Otherwise I can start from further. कुछ और आपको लगता है माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस हो सकता है? Come on. Some economic students can come up with the answers. हाँ जी, last one. कोई बात नहीं, सोचिए. But come up with the answer. It's not like you're just sitting like a dummies, is it? आपको हमने देखो बात वही करनी है कि दोनों में डिसीजन मेकिंग एक ही है। इकोनॉमिक्स को जोड़ो ना अब इसके साथ। इट्स अ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इट्स अ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स को ऐड कीजिए इसके साथ, माइक्रो मैक्रो को छोड़ दीजिए। व्हाट आर द डिसीजन थिंग्स आर डन विद द माइक्रो इन इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीजें ऐड कर रहे हैं? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स इट। और MSMEs, वो कौन है? माइक्रो है कि मैक्रो है? मैक्रो ही ना। MSME तो मेरे घर की बिजनेस थोड़ी है। MSME पूरा माइक्रो एंड स्मॉल स्केल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, पूरी इंडस्ट्रीज। मेरे घर की शॉप माइक्रो हो सकती है, लेकिन एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री मैक्रो है। थोड़ा सा प्लीज सोचिए। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन मेरा कॉन्सेप्ट है कि इकोनॉमी का है? इन आपके लिए वही चीज महंगी है, आपके लिए वही चीज सस्ती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक ही चीज एक इंसान के लिए सस्ती हो सकती है, दूसरे के लिए महंगी हो सकती है। आपके लिए बहुत बड़ा इन्फ्लेशन, आपके लिए ठीक तो है, 100 रुपीज की आती तो ठीक है, आपके तो 100 रुपीज में तो बहुत महंगी है। मार्केट बताएगी ना वो इन्फ्लेशन है कि डिफ्लेशन है।
तो इकोनॉमी कॉन्सेप्ट एज अ होल, सबको महंगा लग रहा है, इन्फ्लेशन है, आपको लगे ना लगे, सो इट्स अ इंडिविजुअल प्राइस अकॉर्डिंग टू मी इज इंडिविजुअल, बट इकोनॉमी एज अ होल इट्स अ मैक्रो, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ऐसा ही कुछ और सोचिए। आप किसी एक प्रोडक्ट का डिमांड करते हैं, यू विल लाइक टू बाय 1 kg ऑफ एप्पल, आपकी डिमांड। इंडिया में टोटल एप्पल्स का कितना डिमांड आया, क्या हम अपनी डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं कि नहीं, क्या हमें इंपोर्ट्स करने पड़ेंगे, दैट डिसीजन विल बी टेकन बाय इकोनॉमी एज अ होल, बट दैट डिसीजन इज टेकन बाय मी इटसेल्फ। ये मैसेज साइड आ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट मैक्रो है कि माइक्रो है? मैक्रो, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट आई एम अनएम्प्लॉयड, मुझे जॉब नहीं मिला, आई एम अनएम्प्लॉयड, बट हियर वी सेड दैट देयर इज अ 6.4% ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द इंडियन इकोनॉमी। ये किसकी अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं? पूरी इकोनॉमी की अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हैं, एग्रीगेट इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं। ट्रेड किसकी बात है? मेरी तो नहीं है, obviously I will talk about whatever the demand and supply of particular good in the market. मुझे कोई commodity चाहिए, मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है, मुझे बाहर से मंगानी पड़ेगी, that's it. But that is a decision by the government itself, that how much trade, import and export I have to do. So that international trade, that is a decision comes under the macroeconomic policy. While I am talking about demand and supply, that's my decision, that's a micro in nature. What else you can come up with the things? Poverty. I am having a less income, but Indian economy में poverty जो है 21.7% है, that is a macro level. ये डेटा कौन बता रहा है? मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के थ्रू इंडिया में 21.7% पॉवर्टी रेट है, पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन, स्टैंड्स फॉर H into P, the I into O, that head count index into deprivation of poverty index. So that is some data you can fetch it out from there also. Okay, so same as many other things we can find out. कुछ और बताइए? Perfect. Growth and development is a concept of macro, while it is personal growth and development can be there obviously, but economy growth and development can be the numeric and the quantitative terms. Done? So in this way we can contribute or we can divide the things to be done. Getting the point? Further, in the same manner, we will say the macroeconomic policies take a decision accordingly. ये तो हमारी problems थी, देखो, unemployment, inflation, poverty, ये हमारी problems हैं. Decision making भी बताइए, आप अपने लिए कौन सी पॉलिसी लगाते हैं? आपके घर में जितने पैसे आ रहे हैं उसको कैसे खर्च करना है, घर में बजट बनता है ना, ऐसे इंटरनेशनल का बजट बनता है, देश का इकोनॉमिक सर्वे होता है, आपका अपना घर पे सर्वे करते हैं कितना पैसा कहाँ से खर्चना है, कौन सी चीज़ कहाँ से लानी है। सेम एज वी हैव टू मेक सेम डिसीजंस फॉर द इकोनॉमी एज अ होल। आप अपने इकोनॉमी घर में देखते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो पैसे सेव करना शुरू कर देते हैं, खर्चा नहीं करते हैं। गवर्नमेंट क्या देखती है? मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, टैक्स लगा देते हैं इनके ऊपर क्योंकि ये लोग ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, इनको सब्सिडीज दे देते हैं क्योंकि इन लोगों के पास पैसे नहीं है। सो गवर्नमेंट इज मेकिंग पॉलिसीज एट मैक्रो लेवल, यू आर मेकिंग पॉलिसीज एट इंडिविजुअल लेवल। आप देखते हो पैसे नहीं है, लोन कहाँ से लेना है, गवर्नमेंट देखती है लोन नहीं है, कहाँ से लेना है, IMF के पास जाना है, वर्ल्ड बैंक के पास जाना है। सो सेम थिंग्स आर गोइंग ऑन, बट दैट इज ऑन द मैक्रो लेवल, दैट इज डन टू द माइक्रो लेवल। आर यू गेटिंग इट? ऑल द प्रॉब्लम्स, all the solutions at micro, at macro. Are you getting things? So that concept can be considered as a macro and micro. अभी एक लास्ट कर लेते हैं, उसके बाद we will find out because it's coming from there only. आप लोगों ने बोला ना इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये तो स्पेसिफिक टॉपिक भी है आपके इस पैटर्न में। देखिए, whenever we talk about economic growth and development, for a layman it's the same.
हमारे लिए सेम है, जैसे नॉट हमारे लिए नहीं क्योंकि हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, हमारे लिए नहीं है। सेम एज इफ आई से सम पीपल यूज्ड टू गो टू द मार्केट एंड से बट भैया इसका प्राइस क्या है, सम सेज भैया इसकी कॉस्ट क्या है, सम सेज इसकी वैल्यू क्या है। दीज ऑल आर डिफरेंट थिंग्स। बीइंग an economic student I would like to ask price, being as a layman I can ask anything। प्राइस तो है कि वो किस पे आपको कमोडिटी देने को तैयार है, कॉस्ट क्या है, उसको बनाने का खर्चा कितना आया, वो आपको क्यों बताएगा। He will add cost plus profit margin, then it is called to be price। So he will never let you the price, sorry, the cost, he will let you the price only, value। A book of this your semester is considered to be very much important for you, but for the bhujia wala who is making a rolls and cones out of it, he doesn't matter of what is the cost of the price। उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है उसकी, वो रद्दी में 5 रुपए किलो खरीद के लाएगा, और आपके लिए वो आपके कोर्स की है तो आप 500 की वो बुक खरीद के लाएंगे। तो वैल्यू अकॉर्डिंग टू द यूज, नॉट अकॉर्डिंग टू द प्राइस। सो दैट्स, जैसे ये वर्ड एक दूसरे के लिए यूज नहीं हो सकते, इसी तरह इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक दूसरे के लिए यूज नहीं हो सकते, बोथ आर डिफरेंट। लेमैन के लिए दोनों सेम चीज होती है, लेकिन हमारे लिए वो सेम नहीं होनी चाहिए। And I'm gonna ask you, but have you gained some weight or lose some weight from previous year, or you're stagnant? Anybody who has just lifted some weight or some gained some weight, isn't it? Let's take example of mine. Suppose I have gained some weight or I have lose some weight. So it is what? Countable. You can count, isn't? My age is number is increasing, my weight is increasing, height is not increasing, but things other, the hair fall can decrease the number of hairs into the head. So that is accountable. But the knowledge and the experience I am gaining with the time, that cannot be counted. That is just like a qualitative. She is comparatively more beautiful than her. I can't give a 10 number for nose, 2 number for eyes, 3 number for brows and 5 numbers for cheeks. She is more beautiful than her. ये क्या है? Comparative. मैं दो को compare करूँ. She is more honest than her. She is more hardworking than her. जिसको आप count नहीं कर सकते, सिर्फ उसके quality को measure कर सकते हो. वो क्या है? वो आपकी डेवलपमेंट है। आप डेवलप कर रहे हो टाइम के साथ साथ, लेकिन आप ग्रो भी कर रहे हो। हर चीज दोनों के साथ चलती है, स्टैटिक और डायनेमिक। आपकी हाइट स्टैटिक हो सकती है, आपका वेट डायनेमिक हो सकता है, आपकी एज डायनेमिक है, आप स्टैटिक हैं। आपकी आईज का साइज, आपका नोज का साइज इज स्टैटिक, बट योर एज इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, योर वेट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, सेम एज दैट। कुछ चीजें जिनको आप मेजर नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड योर quantitative, qualitative, which can be counted, that is a quantitative. So that is the basic difference between the growth and development. Growth says growth, numeric numbers. जिस भी चीज को आप काउंट कर सकते हैं, अब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या काउंट करना है? नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम और ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट 5% ग्रोथ हो गया, 6% ग्रोथ हो गया। व्हाट इज पर कैपिटा इनकम में बिटिया? पर कैपिटा इनकम क्या होती है? अच्छा चलो, पर कैपिटा नहीं, पहले नेशनल इनकम क्या होती है? NY स्टैंड्स फॉर नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है? कोई बात नहीं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एक फाइनेंशियल ईयर में। गुड, वेरी नाइस। इट मीन्स एक कंट्री में जितने भी सोर्सेज हैं उन सबसे मिलने वाली इनकम। एक फाइनेंशियल ईयर दो तरह के होते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर और एक कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर होता है 31 मार्च टू 1 अप्रैल, कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी टू दिसंबर। तो जब भी हम कोई इकोनॉमिक टर्म्स की बात करते हैं, किसी भी पॉलिसीज की बात करते हैं, तो हम फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं। जब भी हम नॉर्मल जनरल बात करते हैं तो हम कैलेंडर ईयर की बात करते हैं। सो हम यहाँ फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे। एक फाइनेंशियल ईयर में ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय विद इन द टेरिटरी ऑफ एनी कंट्री इज कंसीडर्ड टू बी अ वेरी नाइस, कम अप, GDP, वेरी नाइस। इट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रोडक्ट, इनकम नहीं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब चीजें, गुड्स,
एंड सर्विसेज प्राइस थोड़ी है, रुपीस थोड़ी आए, चीजें मिलके आई ना। आपने ये सारे पेन्स बनाए, आपने ये बनाया, ये आपके गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन है। यू आर नॉट गिविंग इट एज अ न्यूमेरिक नंबर। सो मींस जब ये गुड्स एंड सर्विसेज को उसके प्राइस पे बेचा जाएगा तो ही तो पैसे आएंगे, वही तो नेशनल इनकम होगा। तो क्वांटिटी इनटू प्राइस इज कॉल्ड नेशनल इनकम। क्वांटिटी जितना प्रोड्यूस किया और जो सी चीज जिस प्राइस पे बिकेगी वो उसकी नेशनल इनकम हो गई। नेशनल इनकम इज कॉल्ड दिस। डन। एक इकोनॉमी में, एक फाइनेंशियल ईयर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उसकी जो प्राइस वैल्यू है वो नेशनल इनकम है। पर कैपिटा इनकम का मतलब एक व्यक्ति को कितना इनकम मिल रहा है। We said that suppose we want to make some party and all, we have 200 rupees to collect it। 200 रुपये में पार्टी होगी, हमें 200 रुपये चाहिए। आपकी क्लास में 10 लोग हैं तो एक बच्चे को कितने पैसे देना? हाँ जी 20 रुपये। कैसे पता चला? टोटल इनकम को लोगों से डिवाइड कर देते हो तो पता चलता है मेरा हिस्सा कितना है। ये आपने कंट्रीब्यूट करना था ना, नेशनल इनकम आपको बढ़ रही है। वी हैव अ नेशनल इनकम, यू आर द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, डिवाइड कर देते हैं, आपको जो हिस्सा होगा वो आपको मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड इंडिया की पर कैपिटा इनकम। एनीबॉडी कैन आंसर? 1,28,000। इंडिया की पर कैपिटा इनकम 1,28,000 रुपए है। आपको मिल रहा है 1 लाख रुपए? Are you getting 1,28,000 per month? Sorry? 2,3,000 क्या चीज 2,000 होगी? पर कैपिटा किसकी? इंडिया की। नहीं, डॉलर्स में भी 6950 है। डॉलर में भी बताएंगे, अभी हम रुपीस में बता रहे हैं कि अगर हमने करोड़ों ट्रिलियन का पैसा कमाया, ट्रिलियन की पॉपुलेशन से डिवाइड किया तो पर कैपिटा इनकम 128,000 है। अभी जब हम नेशनल इनकम की बात करेंगे, पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि कुछ कांस्टेंट बेसिस पे होती हैं, कुछ करंट प्राइसेस पे होती हैं। दैट इज अ डिफरेंट। कुछ नॉमिनल प्राइसेस पे होती हैं, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। कुछ डॉलर्स प्राइसेस पे होती हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी भी होती है। तो कोई एक कहते हैं 1,28,000 रुपए, तो उसका मतलब सारे आंसर गलत नहीं है। वो गलत नहीं है, वो सही है, क्योंकि उसका पैरामीटर कोई और है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उस बारे में भी हम बात नहीं करें, हम करंट प्राइसेस पे 1,28,000 की बात कर रहे हैं। तो you all are supposed to have 1,28,000 including me. Are we getting? From so long we are not getting. So चलो चलते हैं मोदी जी के पास and we'll ask for the give us the 1,20,000 per month. This is called. This difference is called what? Unequal distribution. Very nice. Unequal distribution of wealth and income. Ambanis are getting 1,28,000 rupees per month. 1,28,000 crore rupees per month, and the person who is a rickshaw puller is getting 1,200 rupees per month. तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है ना, आपके सबके हिस्से के पैसे उनके पास चले गए। यही तो कम करना है, यही तो इनइक्वालिटी है इनकम और वेल्थ की। इसी की वजह से तो पॉवर्टी आ रही है, यही तो खत्म करनी है इकोनॉमी को। सो दिस इज द 1,20,000 पर कैपिटा इनकम। ये कैसे पता चला? नंबर में पता चल गया। आज 1,28,000 है, कल को 1,30,000 हो जाएगी, कल फिर 1.5 लाख हो जाएगी। तो इससे क्या पता चल रहा है? इकोनॉमी इज ग्रोइंग, कि हाँ जी हमारे देश में पैसे बढ़ गए। ठीक है। अब जीडीपी डिवाइड बाय पॉपुलेशन इज पर कैपिटा इनकम। यानी अगर मेरा डिनोमिनेटर बढ़ गया, ये डिनोमिनेटर होता है ना, हमारे पास 1,000 रुपीज थे, 10 लोग में बढ़ रहे थे, कितने पैसे थे? 100 रुपीज पर कैपिटा इनकम थी। मैंने एक साल में डबल कर दी इनकम, जीडीपी बढ़ गई। हम कहते थे जीडीपी 1,000 रुपए की थी, आज जीडीपी 2,000 की है। इसका मतलब देयर इज अ ग्रोथ इन द इकोनॉमी, बट सेम एज देयर इज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, आर यू स्टिल रिमेनिंग ऑन द सेम? तो डिनोमिनेटर नहीं बढ़ना चाहिए ना, पॉपुलेशन नहीं बढ़नी चाहिए ना। दैट्स व्हाई दे सेड दैट इफ द ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम is less than the growth rate of population, then there is no development, no growth. अगर अभी इसी का मैं एक और एग्जांपल ले सकती हूँ, ये 2000 बढ़ी लेकिन लोग 40 हो गए, तो आपकी पर कैपिटा इनकम कितनी हो गई? 50 रुपीज हो गई। ये तो डबल हुई है लेकिन डेवलपमेंट तो हुई नहीं। क्यों? Growth rate of population is greater than the growth rate of national income, no development. So that's why they want
इसीलिए हम बार बार पॉपुलेशन के पीछे क्यों भाग रहे हैं? वी डोंट वांट टू कंट्रोल द पॉपुलेशन जस्ट टू हैव अ स्पेस प्रॉब्लम, जस्ट टू हैव अ रिसोर्सेज प्रॉब्लम. वी आर गोइंग फॉर अ इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. वो लार्जर से लार्जर होता जा रहा है जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है. सो दैट्स व्हाई दिस ग्रोथ रेट, दिस नंबर, दैट इज रिक्वायर्ड टू बी अंडरस्टैंड. गेटिंग द पॉइंट? सो पहली बात, जब ये न्यूमेरिक नंबर बढ़ रहे हैं, चाहे वो नेशनल इनकम के, चाहे वो पर कैपिटा इनकम के, ग्रोथ रेट क्या होगी? तीसरी बात आ गई, ग्रोथ रेट. वो क्या होगी? I will have a sip of water to this person. Just tell me whatever it's a growth rate. हाँ जी, सोच लीजिए इधर क्या होता है? Per capita income rate से increase होगी. पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट होगी. इकोनॉमिक ग्रोथ रेट मीन्स GDP जिस रेट से जीडीपी बढ़ रही है. थी पर कैपिटा इनकम, आज जीडीपी अगले साल 150 हो गई. ग्रोथ रेट क्या है? 50%. 50% इज अ ग्रोथ रेट. कैसे कैलकुलेट किया आपने? दोनों को डिफरेंस कर दिया. That is always the formula of growth rate. The economics student must be knowing of it. Growth rate का मतलब मैंने P लिया है, प्राइस ले लिया, आप G ले सकते हैं, ग्रोथ रेट ले सकते हैं. ये पहले साल की ग्रोथ रेट या अगले साल की ग्रोथ रेट? 1 2 ले लो, ये लो. ये पहला साल है, दूसरा साल, सेकेंड साल में से पहला माइनस किया, कौन पहला? कभी भी आप कंपेयर जब करते हैं ना, मैंने आपसे पूछा आपका वेट लूज हुआ है कि गेन हुआ है, तो आपको 5 का डिफरेंस आया, वो ग्रोथ रेट नहीं है. बेसिक से जब तक डिवाइड नहीं करते तब तक ग्रोथ रेट नहीं आती. सो ग्रोथ रेट शुड बी 150 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100. सो दैट इज अ 50% ऑफ ग्रोथ रेट. अगर मैं ये वैल्यूज को चेंज कर दूं तो ये और ये सेम नहीं आएगा. सिर्फ डिफरेंस का मतलब ये नहीं होता. लेट मी क्लियर वन थिंग. सो व्हेनेवर यू आर फाइंडिंग अ ग्रोथ रेट, न्यूमेरिक एग्जांपल्स भी आपको कोई ना कोई आएगा. ग्रोथ रेट का मतलब चेंज का, ग्रोथ रेट का मतलब that is a difference upon the base, that is change in growth, change in prices upon prices into 100, that is called a growth rate. So we can find out the growth rate of 5% कि 5 साल 5% इकोनॉमी की ग्रोथ रेट होगी. ये तीनों चीजें क्या है? न्यूमेरिक, काउंटेड. सो ये हमारे काउंटेड नंबर्स हो गए. ठीक है जी, इसको सबको इरेज करते हैं. अल्टीमेटली वी एबल टू फाइंड आउट इट इज अ काउंटेड इन नंबर. On the second side, we are saying whenever the welfare of economy is increasing, can we count the welfare? Why not? Can we count the welfare? नहीं. Welfare क्या होता है? What's welfare? That is done with the. So how you will find out there is a welfare in the economy? Isn't? When we're looking at the poor people, how we can see now they are wearing good clothes, there is a welfare is there. Like how we can find out a measure of welfare in the economy? Come on. अच्छी education. हाँ जी, good. Better health facilities. One more. Standard of living increase हो जाए. The goods they are consuming. Anything else? नंबर ऑफ पॉवर्टी खत्म हो जाए, सीधी बात. अनइक्वालिटी खत्म हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाए. जो भी वेलफेयर को मेजर करने के कंपोनेंट्स हैं, अगर वो हमारे ठीक हो रहे हैं, इकोनॉमी में पॉवर्टी 21% से 20% आ जाए, 20 से 5% आ जाए, तो इकोनॉमी वेलफेयर कर रही है. सो वेलफेयर फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैन नॉट बी काउंटेड. वी कैन नॉट काउंट द वेलफेयर बिकॉज इट इज अ qualitative and this is a it is a quantitative in nature, it is a qualitative in nature. ये change हो गया. I think इसको so quantitative and a qualitative are the two things. That is the first thing which makes a difference between the your growth and development. This is called a narrow and this is the wider because it includes
ग्रोथ प्लस वेलफेयर, तो ये बड़ा है। ग्रोथ तो सिर्फ एक न्यूमेरिक नंबर की बात कर रहा था, इसमें वेलफेयर भी ऐड हो गया। ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी भी बढ़ रही है और पॉवर्टी भी कम हो रही है, इनइक्वालिटी भी कम हो रही है। फिस्कल एंड मॉनेटरी, वेलफेयर पॉलिसीज, तो ये हमारी सिर्फ मॉनेटरी कंसेप्ट को बात करता है, और ये मॉनेटरी प्लस फिस्कल स्टैंड्स फॉर वेलफेयर की बात की। एनीथिंग एल्स वी कैन ऐड? लेट्स नाउ वाइंड अप, जस्ट कम आउट विद आंसर्स, कम ऑन। और ग्रोथ और डेवलपमेंट में कुछ चेंज आ सकता है? कौन सा अच्छा पिक्चर है डेवलपमेंट का, इकोनॉमी का? किसको देख के आपको ज्यादा सही सेटिस्फेक्शन रहेगी इकोनॉमी ठीक हो रही है? डेवलपमेंट। तो ये वाइडर पिक्चर है, इसके अंदर हम इकोनॉमी का एक्चुअल ग्रोथ देखते हैं। ये सिर्फ हम न्यूमेरिक नंबर ग्रोथ देख रहे हैं, सिर्फ बुक कीपिंग के सेंस से देख रहे हैं कि इकोनॉमी 5, आपको पता लग रहा है इकोनॉमी 5% ग्रोथ रेट से बढ़ रही है। आर यू फीलिंग ग्रोथ रेट ऑफ इज रोमिंग इनटू द अराउंड यू? नंबर घूम रहे हैं हमारे सामने? नहीं, हमें कैसे पता चलता है वेलफेयर हो गया? दैट कैन बी सीन। Poverty is being decreases, infrastructure is being maintained, good healthy facilities there, sustainable development is going on. हमें वो दिखती है, ये हमें दिखती नहीं, ये सिर्फ नंबर में दिख रही है, वो हमें नहीं दिख रही, ये हमें दिख रही है, वेलफेयर हमें दिखता है. So that's why we are looking this thing as to be the true picture of development rather than the numeric numbers which is to be counted into the numbers only. ये वैसे भी biased है, क्यों? अभी तो हुआ ये biased नहीं है, आपको कहाँ पर कैपिटल इनकम मिल रहा है, लेकिन अगर आपके लिए कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट स्कूल खुलेगा, that will be welfare system for you people as well. So ये हमारी more comparatively real picture को दिखाता है, और ये हमारे लिए only compared to state side of static situations. Many other points we can add later on once we will go through with the topic. Otherwise half of the topics being over. हमारा माइक्रो मैक्रो आप थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, प्राइस मैकेनिज्म आप रिवाइज करेंगे, आप सिस्टम्स ऑफ इकोनॉमी, सोशलिस्टिक and all three we will discuss, and then after the economic problems of economy, what to produce, how to produce, for whom to produce. So almost 4 to 5 topics we have covered a bit of, and please revise it so that we can go ahead with the continuation of the topic. Material is there with you, you can go ahead. If you don't have, I'll share some of the PPTs with you, but I believe rather than going for the PPTs you should go for the book, because PPTs are giving the crux of the story, isn't it? But if you go to the theoretical concept, those are new to the economics, please go for the NCERT. Don't just rush towards the this Singhania and Ramesh Singh. Abhi nahi, within the week or within the month we will go ahead. आपको थोड़ा पेस बनना चाहिए, अभी पता ही नहीं ना क्या चीज़, PW पर कैपिटा इनकम को हम BCY लिखते हैं, नेशनल इनकम में NY लिखते हैं, अभी आपको ये बेसिक्स नहीं क्लियर है, तो अभी आप इतनी जल्दी से रश ऑन होकर बड़ी बुक पे मत आए, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. अभी आप सिर्फ NCERT की बेसिक बुक्स पढ़ें. यू कैन गो फॉर +1 +2 NCERT, दिस अवेलेबल ऑन द नेट. NCERT की हमारी ऐप है, वहाँ से आप बुक ले सकते हैं. यू कैन गेट द क्वेश्चंस आउट ऑफ इट. गेटिंग माय पॉइंट? सो ट्राई टू रीड बेसिक्स. इफ यू आर नॉट रीडिंग, इफ यू आर कमिंग बैक विद द सेम थिंग, देन सॉरी, it's no worth to be coming there. Very true. Otherwise in my very first lecture I never used to teach. I used to first of all पढ़ाने से पहले पढ़ाने के लिए तैयार होना ज़रूरी होता है, पढ़ने के लिए तैयार होना ज़रूरी होता है. You are sitting over there because you have already spared 1.5 hour of your whole day and you are decided that you will sit in front of me and listen me. तो आप में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं तो obviously you are better than the other person. First thing. But second thing I would like to say, if you are not a better person than the previous day, then no worth. अगर आप स्टैटिक यहाँ से भी स्टैटिक रह गए तो इस डायनेमिज्म का कोई मतलब नहीं है, एज के बढ़ने का कोई मतलब नहीं है. आपने पिछले 4 दिन से अपने आप में क्या इम्प्रूवमेंट देखी, चाहे वो नॉलेज को बेस पे है, चाहे वो सब्जेक्टिव बेस पे है, चाहे फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ गई, आपने वॉक किया, जो भी किया, किसी भी तरह से अगर अपने आप को आप 5 दिन से पहले से बेहतर नहीं समझ रहे तो सॉरी, आपका कोई फायदा नहीं है, ना यहाँ बैठने का, ना आपको अपने आप की एग्जिस्टेंस का. सो प्लीज कीप योर सेल्फ अपलिफ्ट डेली बेसिस. इट्स नॉट योर theoretical concept, your BA or MA graduation classes, day before exam you will cram all the things, vomit out in the paper and you will get 80%. ये वो नहीं है. यहाँ daily a spoon of thing will go inside, only then the sea will be covered up. वो एक दिन में भरेगा तब जाके वहाँ वॉमिट होगा, अदरवाइज एक दिन में पिछली रात पढ़ोगे और पेपर दे लोगे, ऐसा नहीं हो सकता. सो प्लीज़ अपने आप के नोट्स
हर एक इंसान का तरीका अलग है. Everybody is preparing their notes and reading material is different. Capability of reading is different. So please go through with the different sources, whatever you feel like easy to you, language which is easy to you, accept it, come back with your questions. Unless you are not asking questions, you are not a healthy mind. जब तक चीज़ें देखोगे नहीं, देखने के बाद अब ये मैप मैंने देखा, मेरे मन में क्वेश्चन आना चाहिए ये मैप कौन कौन सी साइट्स पे हो सकता है, ये कौन कौन सी वेबसाइट्स, ये मैप बनाता कौन है. आपको अभी हम बात नहीं कर सकते इस मैप के बारे में. इफ आई टॉक अबाउट, हम कहते हैं सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन सी है? यूएस. सेकेंड इज वेयर इज रशिया. Isn't it Russia is a big economy? According to the size I'm talking about. चलिए अभी तो इसमें से क्वेश्चन निकल आया ना. Getting my point? हमने सिर्फ इस मैप को ही देखा और मैप देख के लगा कि मुझे सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अमेरिका दिख रहा है, वो रशिया ऊपर दिख रहा है. यहीं से मेरे को क्वेश्चन आ गया. मेरे को ये देखने के बाद सबसे पहले घर जाके ये देखना है कि कोई मुझसे पूछे, पहले मुझे जाके देखना है कि इसमें सबसे बड़ी इकोनॉमी और छोटी इकोनॉमी कौन सी है. Until unless these are just like a blinking eyes, it will not give you anything. Until unless they are not piercing anything and finding a question comes up there. Sources आपके पास हजार है. वो जमाने चले गए कि आपको ढूंढना पड़ता था, पूछना पड़ता था. अभी बैठे बैठे गूगल करोगे तो 4 आंसर निकल जाएंगे. ओके, वंस यू फाइंड द आंसर, ये कौन सी कंपनीज बनाती हैं, इसको बनाने का भी एक प्रॉब्लम. मैंने आपको क्यों क्वेश्चन किया, वंस आई सी दिस आई जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट क्वेश्चन इन माय माइंड. वन इज द ग्लोब, one is in a flat picture. Mediator projection. Just read about this thing. जितनी कंट्रीज बड़ी हैं वो एक्चुअल में उतनी बड़ी नहीं है. Mediator projection is I think is the word. Mediator projection उन कंट्रीज को फ्लैटर कर देता है, जितनी मिड लाइन्स है ना उनसे दूर कर देता है, तो वो कंट्रीज बड़ी लगती हैं. एक्चुअल में उतनी कंट्रीज बड़ी नहीं है. वो ग्लोब पे देखते हो तो वो कुछ और है, जब उसको फ्लैटर बीच पे लेके आते हो तो वो अलग हो जाती है. So everything have a question, every single thing have a question. See it in the deep down. उसको देखोगे आंसर निकलेंगे. Anybody from Punjab? How many districts are in Punjab? 30? You're not sure. Is there any from Haryana? How many districts? पता नहीं, क्या करने हैं? 23. Any from Himachal? कितना डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल में? 12. That is the basics. So we'll talk about someday how to introduce yourself so that at least you should be knowing आप कहाँ से हो, कैसे हो, उसकी जगह क्या है, कहाँ से आई, उसका बेसिक नेम क्या था, उसकी फेमस प्लेस क्या है. That is to be awareness. That is not to be given in any feedback कि मैं आपको आज हरियाणा पढ़ा रही हूँ, आज मैं आपको पंजाब पढ़ा रही हूँ. That is to be done by yourself. But I can give you the clicks कि हाँ ये देखो, ये ढूंढो. That you have to done by done. So that's it for today. We'll discuss the rest of the part tomorrow. That's it. Thank you. Thank you.